السلام علیکم. اوپن مائک کیفے میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا عارضی ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات, آج ہم گفتگو کریں گے تمباکو مافیا پر اور حکومتی خاموشی اور اس کے اسرار و رموز پر. ہمارے ساتھ پینل اور مہمان وہی ہیں جو گزشتہ 2 شوز میں ہمارے ساتھ تھے. محسن بھٹی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, فیصل شیرجان صاحب, اور ایک ادر ڈمی بھی ہمارے ساتھ وہی کی وہی ہے. پھر ہمارے ساتھ کچھ کیریکٹرز ہیں جو آئے ہیں ڈمی میوزیم سے. ہاں جی, اپنا تعارف خود کروائیے. السلام علیکم جی, میرا نام ہے مجدد ثقلین فاروقی. اور ہیں کیا آپ؟ جی میں ایکسائز آفیسر ہوں. جی آپ کون ہیں بھیا؟ سر میں شاپ کیپر ہوں. میری اپنی شاپ ہے kash.com. kash.com. کش سگریٹ دے کش. اور آئی سویئر ٹو گاڈ میرا اس ٹائم کام بہت فلرش کر گیا ہے. میری 12 اس ٹائم برانچاں نے. کیا فضول آدمی. کش کی بجائے ہونا چاہیے تھا hush.com, بلکہ hush.com. اچھا ایک کہتے لعنت روتر نہیں کہتے. یہ صرف کتوں کے لیے کہتے ہیں میرے بھائی. بھائی یہ کیا بات ہوئی, آپ مجھے کتا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میں آپ کو کتا نہیں سمجھ رہا. وہ کون صاحب ہے؟ I am Tony bro. ٹونی برو. ٹونی برو. اچھا, برو از بٹوین بردر اینڈ برا. یہ راوی والی سائڈ دا انگریز ہے بھاجی. یہ اتنے مجھ نہ انگریزی بولتا ہے. کرتے کیا ہیں ٹونی برو؟ I am a chain smoker, you know bro. جناب گفتگو کا آغاز آج کر رہے ہیں فیصل شیرجان صاحب سے. جی, تمباکو کی جو انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اتنی ہی خطرناک ہے, اتنی ہی کارٹلائزڈ ہے جتنی آپ کی شوگر کی انڈسٹری ہے. اس میں بھی بہت پاورفل پولیٹیکل لوگ شامل ہیں, ان کے بغیر یہ کاروبار چلتا نہیں ہے. ایجوکیشن وہ بھی اتنا ہی بڑا کارٹل ہے. ایجوکیشن بھی بہت بڑا کارٹل ہے. یہ ٹبیکو کی بھی انڈسٹری جو ہے صرف یہاں نہیں, امریکہ میں بھی بہت بڑی لابی ہے. جی ٹھیک ہے نا, اور وہ کنٹرول کرتی ہے بہت سی چیزوں کو, وہ گورنمنٹس کو کنٹرول کرتی آئی ہے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے. پاکستان میں بھی یہی ہے. ایک تو پولیٹیکل فیملیز ہیں, تمباکو کی جو کاشتکاری ہے اس میں بھی انوالوڈ ہیں, اینڈ چین تک جو ہے وہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جب سگریٹ جو ہے ان دکانداروں تک پہنچتا ہے. ان ساروں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہر سگریٹ سے, ہر ایک سٹک سے میکسیمم کمائی ہو سکے. اور سب سے افسوسناک چیز جو ہے, ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ بچے ہیں, ینگ لوگ ہیں, ٹین ایجرز ہیں. کیونکہ اگر میں کسی کو 12, 13, 14 سال کی عمر میں سگریٹ پہ لگا دوں تو کم از کم 40, 45 سال وہ سگریٹ پیتا رہے گا. تو اس کی جو لائف ٹائم ویلیو ہوگی, جتنے پیسے وہ دے کے جائے گا انڈسٹری کو, اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. پبلک سپیس میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, قانوناً جرم ہے, لیکن ہر کافی شاپ میں, ہر ریسٹورانٹ میں لوگ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں. اچھا فیصل صاحب, ایک چیز میں نے بڑے غور سے دیکھی ہے. امریکہ جب میں تھا تو سگریٹ کی قیمت بہت زیادہ تھی. جی, مجھے پتا یہ چلا کہ قیمت تو وہی کی وہی ہے, بہت تھوڑی ہے, اس کے اوپر ٹیکس بہت زیادہ. اچھا, برطانیہ میں اس سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ اس وقت وہاں پہ ویٹ نہیں پڑتا تھا, اس کے اوپر ویٹ بھی پڑتا. بالکل. میں یو کے میں رہا ہوں, وہاں پر کہتے تھے کہ سگریٹ کی سمگلنگ جو ہے نا وہ بہترین اسمگلنگ ہے. جی جی جی, کیونکہ ڈرگ پہ تو آپ کو جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. سگریٹ کی اسمگلنگ پہ اگر وہ ڈالے گا بھی جیل میں تو کم مدت کے لیے ڈالے گا, کیونکہ چھوٹا وائس کنسیڈر ہوتا ہے, بڑا وائس کنسیڈر نہیں ہوتا. دوسری چیز, میں منشیات تک اس وقت تک نہیں جاتا جب تک میں سگریٹ نہیں پیتا. ٹھیک ٹھیک. تو یہ منشیات کے بھی جو ہے نا شروعات جو ہے وہ سگریٹ سے ہوتا ہے. پہلا زینہ ہے, پہلا زینہ ہے محبت کے کرینوں. بالکل. واہ واہ. اچھا ایف ایچ جے, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں کتنے دنوں میں سگریٹ بغیر ہاتھ لگائے زبان سے فلپ کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کی ڈمی ہے. نہیں سر, میری ڈمی نہیں ہے. یہ آپ کا منی بھی ہے. یہ میرا منی می بھی نہیں ہے. میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. اچھا, یہ فلم فین چ جڑا چھلیٹا نہیں سی وہ منی ایس آر کے. یار ویسے آپ کو شرم بھی نہیں, آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ یہ کیا کیا میں نے؟ یہ جو فلپ کرنے کی بات, یہ جو حرکت یہ جو کی ہے, پاکستانی فلموں میں کون کرتا ہے؟ آفتاب, اب نہ کوئی اچھی فلم آئے گی, نہ اچھی کمپوزیشن آئے گی, نہ ہی اچھا شعر آئے گا. وہ لوگ اب رہے ہی نہیں جو یہ ساری چیزیں پروڈیوس کرتے تھے. اور اس بات پہ احمد ندیم قاسمی نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, بتائیں کیا کہا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کہا ہے. یار مجھے کیا, بھائی محمد دین قاسمی صاحب کی محمد دین قاسمی, یار احمد ندیم قاسمی, محمد دین, یہ پہلی دفعہ سنا یار. بھائی واہ واہ واہ, ببو رانا تم جاہل مطلق تو تھے ہی, اس قدر پسماندہ ہو یہ مجھے آج اندازہ. جی وہ جو جا بندہ تسی اپنے سامنے بایا نا, وہ ٹھیک ہے, لیکن جو میں نے اپنے سامنے بایا ہوا, واہ واہ,
मोहम्मद दीन काज़मी. यार मेरा ख्याल था पहले इसने कॉमेडी की है. ही एक्चुअली मीन्स इट. क्या नाम है उनका? मोहम्मदीन कासमी. अहमद नदीम कासमी. एक दो लफ्ज़ों का फर्क है. नहीं वजन भी ठीक है. अहमद नदीम के मोहम्मद दीन. मोहम्मदीन कासमी. कौन सी फिल्म अच्छी बन गई जी, आप जरा कुछ रोशनी डालेंगे. यार आपने इसे मजीद एंगेज करना है. मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान किस हद तक लेंगे. ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਤਾਬ ਬਣਾ ਦੇ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ੀਬੋ 'ਚ ਵੱਜਾ ਜਾ ਕੇ. ਉਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਗਾਰਡਨੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਐਡਾ ਤੇ ਪੈਰ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈਗਾ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ. ਔਰ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਖਜਲ ਹੋਇਆ. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ. ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਠਾ ਜਿਹਾ ਘਾੜ ਐਜ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ. ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਭਾਜੀ. ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ. अच्छा कोई और बात कर लें अब. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. यानी जफर इकबाल साहब. ਹੋਰ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? वैसे इत्तलान अर्ज है कि जफरी का नाम भी जफर इकबाल है. जफरी खान, जफर इकबाल उसका नाम है, जफर इकबाल खान. आज हम अनाउंस कर रहे हैं इस फोरम से कि हमारी टीम का हिस्सा जफरी खान बन चुके हैं. ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ क्या बात है. ਤੇ ਜ਼ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ? इतने खाम खा बहन गए ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਧਰ ਵੱਡੇ 'ਚ. बड़े शो में. ਇਹ ਵੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ. नहीं बड़ा शो छोटा शो नहीं है, उसकी ड्यूरेशन ज्यादा है. ਹਾਂਜੀ ये 18 मिनट का 20-22 मिनट का होता है. ਹਾਂਜੀ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਮਿੰਟ ਦਾ. हाँ, ऐसे ही है. वो 36 मिनट का है ना, ये 18 मिनट का है. अद्दो अद का फर्क है. बाकायदा जी. बहरहाल जफरी खान कभी कभार बतौर मेहमान यहाँ भी आ जाया करेंगे. ਇਹ ਬਾत गुड. फिर वहां से जफर इकबाल साहब ने ठुड्डा मारा. अच्छा यार उसको छोड़े. नहीं सर, ठुड्डा मारा. ये उड़ के गिरे भट्ट साहब के पास. तारिक भट्ट. हाँ जी, वो आगे से खा रहे थे रोटी. ਔਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਬੱਟ ਐਡਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ. नहीं हर बंदा गुस्से में होता है अगर उसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए. ਭਾਜੀ ਬੱਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ. ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਤਾਬ ਬਣਾ. ਤਾਰਕ ਬੱਟ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਮਰ ਜਵੇਦ ਨੂੰ. हमारे रिसर्चर को. ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ. शतर नहीं होता, शुतर. ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਉਮਰ ਜਵੇਦ. शुतर का मतलब पता क्या? ऊंट. शुतर मारा शुतर बेमुहार. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੰਮੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? शुतर मुर्ग. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਮਰ ਜਵੇਦ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ. यार ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ. जी FSJ आपकी तरफ आ रहे हैं. मैंने टैक्स के बारे में पूछना चाहता. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दुनिया भर में सिगरेट पे टैक्स बहुत ज़्यादा है. उसका एक मकसद है. जब आप सिगरेट पे 10% टैक्स बढ़ाते हैं तो 8% उसका इस्तेमाल कम होता है. वाह वाह. ठीक है ना. जितना आप टैक्स बढ़ाएंगे उतने कम जो है लोग जो है सिगरेट की तरफ माइल होंगे. मेरी ख्वाहिश तो ये है कि इसके ऊपर 500% टैक्स लगे. और ये माफियाज जाके रिश्वतें दे के अपने ऊपर टैक्स नहीं लगने देते हैं, अंदर खाते तोहफे तहाइफ और रिश्वतों से काम चला लेते हैं ताकि इन लेजिस्लेशन ना हो सके. अच्छा इसमें मल्टीनेशनल्स इन्वॉल्व हैं. वो डोनेशन देती हैं, वो CSR करती हैं. CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जी जी जी. हम स्कूल बना देंगे, हम जो है साफ पानी मुहैया कर देंगे, इस किस्म की कहानियां होती हैं. साफ पानी मुहैया कर देंगे, फेफड़े हमेशा के लिए तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे. बिल्कुल. और सर इसमें दुनिया में 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं. उसमें एक इंडस्ट्री है टैनरीज की, लेदर क्लीनिंग की, और दूसरी है पेपर इंडस्ट्री. और सिगरेट का, इसका तंबाकू का जो नुकसान है सो है, लेकिन उसके ऊपर जो कागज़ है वो जितना ब्लीच हुआ होता है उसका नुकसान और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है. तो उसमें तो कहा जा सकता है चलें जी सिगार पी लें फिर आप. नहीं ये नहीं है. देखिए सिगार कम पिया जाता है, सिगरेट ज़्यादा पिया जाता है. सिगार मुकाबले में कम डैमेजिंग है, कम हार्मफुल है. कम हार्मफुल तो है. कह सकते हैं ना जी आप सिगरेट ना पिए, सिगार पी लें. बात यह है कि तंबाकू प्रमोट होता रहेगा. बिल्कुल. तो शीशा पी लें आप. ये तो शुक्र है कि शीशा कैफेज बंद कर दिए गए. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. एक वाहिद काम जो है हुकूमत ने जो किया है वो शीशा कैफेज को बंद करवाया. और जब ये शीशा कैफेज अपने अरूज पे थे तो इसमें क्या हो रहा था कि नीचे जो पानी है हुक्के में उसकी जगह शराब डाली जा रही थी और इसमें हैश का इस्तेमाल बढ़ गया था. और शीशे की वजह से ये हो गया था कि वैसे तो शायद आप एक सिगरेट पी लें तो उसका जो आधे घंटे का सेशन था
उसमें आप 20-20 सिगरेट के बराबर धुआं आप इनहेल कर लेते थे। धुआं ही नहीं होता, केमिकल होता है केमिकल भाई, होता है। केमिकल। और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इसकी सेल नहीं हो रही? हो रही है। जगह जगह हो रही है, पुलिस की जेर सरपरस्ती हो रही है। Aftab bro, life is very short. Enjoy it as much as you can. अच्छा आराम से तो बोलो, तुम इतने कॉन्स्टिपेटेड क्यों हो? और ये ऐनक उतारो, ये क्या ਕਿਸੇ लगा? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ। Lights मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं bro. ये कितने मिलियन लक्सेस हैं? ये एक मिलता है लक्सिस सोप, वो अपने पास रखें, उससे अपने हाथ और मुंह को धोया करें। अच्छा जी, आप हैं कौन मुजद्दद साहब? मैंने आपको पहले बताया है, मैं एक एक्साइज ऑफिसर हूँ। इस कारे जलालत में इनका क्या किरदार है? बहुत बड़ा रोल है। ऑब्वियसली होगा। देखिए, जहाँ टैक्सेशन हाई होती है, और टोबैको इंडस्ट्री में अभी भी इतनी हाई नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक ट्रक ये अगर निकाल दें विदाउट एक्साइज तो 50 लाख की कमाई होती है एक ट्रक से? एक ट्रक से, सिंगल ट्रक से। वाह वाह। आपको पता है ये जो आपके घर जाता है, आपके बच्चों के हलक से उतरता है, ओह माय गॉड, नॉट अगेन प्लीज आफ्ताब साहब, ये रिस्क हराम है, इसमें आपको सीसा डाला जाएगा, आपके कानों में पता नहीं क्या हो जाएगा, कब्र में कीड़े पड़ जाएंगे, आपको कैंसर हो जाएगा। प्लीज आफ्ताब साहब, इससे आगे कोई नई बात करें। चले नई बात यह है कि आपको अंदाजा है कि आपके बच्चों के हलक से जो पैसा उतर रहा है, जो रिस्क उतर रहा है, वो ब्लड मनी के जुमरे में आता वो क्या होता है जी? है। FSA अमवात होती हैं टबाको की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से सेहत खराब होती है। सिर्फ ये नहीं कि आपकी सेहत खराब होती है, आपकी आमदन पे फर्क पड़ता है। कातिल के मुआवजे को ब्लड मनी कहते हैं। जिस रुपए की वजह से कत्ल हुआ है उसे ब्लड मनी कहते हैं। तुम वो अपने घर लेके जा रहे हो। भाई मैं तो सिगरेट नहीं पीता, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ट्रक निकलवाते हो ना, अब चुप हो गया, नो मोर क्वेश्चन। 11% अमवात होती हैं सिगरेट नोशी से। ओए। 11%। हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये तीनों चीज़ें जो हैं, और डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ को भी एक्सेलरेट करता है। पाकिस्तान में 300 अमवात रोजाना हो रही हैं ड्यू टू स्मोकिंग। और इस वक्त हमारा ये शो कार्डियोलॉजिस्ट को बहुत बुरा लग रहा होगा। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि हेल्थ मर्चेंट्स बहुत नालायक हैं हमसे। अच्छा जनाब, बड़े दिलचस्प आदाद शुमार अभी आप बता रहे थे। जी, जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है वो उम्र है स्मोकर्स की। 24 मिलियन स्मोकर्स हैं, 2 करोड़ 40 लाख पाकिस्तान में, ओए होए। जिनमें से 11% जो हैं उनकी उम्र जो है वो 12 से 15 साल है, और 6% उनमें से लड़कियां हैं। इस उम्र की लड़कियां हैं जो सिगरेट पीना शुरू करती, ठीक है ना। तो उसका बहुत ज़्यादा आगे भी जाके असर होता है। WHO की रिपोर्ट है कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट 30% टैक्स बढ़ा दे तो कम से कम 25% का इम्पैक्ट होगा। 25% स्मोकर्स कम हो जाएंगे सिर्फ 30% टैक्स बढ़ाने से। 120% बढ़ाना चाहिए 120 हर सूरत। बिल्कुल। अभी बजट आपका 15 अप्रैल तक उसकी चीज़ें फाइनलाइज होंगी। ये वक्त है कि गवर्नमेंट इसको सोचे। FSJ, ये तो आप सुबह दोपहर शाम की बुनियादों पर, मैंने तो देखा करूंगा। कि आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव जी, हैं। मैं करूंगा। वो भी कीजिए, और जहां मौका मिले ये अरबाब बस्तो कुशाद तक बिल्कुल हमारी ये गुजारिश पहुंचाइए। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो डॉक्टर फैसल सुल्तान का है, जो इस वक्त जो है वो माविन खसूसी हैं हेल्थ पे, उनका काम है। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, हम भी आए, आप भी आए, अगर इस दफ़ा इस मामले के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा टैक्सेशन ना हुई, अगर मसलहत कोशी आड़े आई, तो अल्लाह की अदालत में तो आप जवाब देते रहेंगे। जब तक ये शो चलते रहेंगे हमारे, हम आपको याद दहानी करवाते रहेंगे। अरबाब बस्तो कुशाद बड़े दिनों बाद आया। हाँ, अरबाब बस्तो कुशाद क्या मतलब है इसका? ये ऐवानों को कहते हैं जहां में सियासतदान बैठते हैं। नहीं, हुक्मरानों को कहते हैं। फिर वही गल अरबाब बस्तो अच्छा, बस्तो कुशाद का क्या मतलब? बस्त बंद करना, कुशाद खोलना, फाइल खोलने और बंद करने वाले को बस्तो कुशाद कहते हैं। ये फाइल के बारे में अफसर हमेशा कहते हो तंत फाइल दा नाला नहीं खोलना आंदा, तू की गल करेंगे। ये जो बस्तु कुशाद वाले हैं वो खोलने के बाद, नोटेशन करने के बाद फर्श पे फेंकते हैं। जी जी, फर हमेशा हमेशा कहते जी फर्श पे इतनी होती हैं कि टेबल पर रश हो जाता है। उस तो बाद फर्शो कुनात, फर्शो कनात, उसके बाद फातेह खानी एंड डेड फॉर एवर, फिर दाखिले दफ्तर कुनात। अच्छा, आप एक्साइज तक ही रहिए, फरंगी आसफिया में मत घुसिए। मुझे एक्चुअली ड्रामास देखने का बहुत शौक है। अच्छा, स्टेज ड्रामास नहीं होते। कौन है आपका फेवरेट?
मेरा सबसे फेवरेट वो है, वो क्या है वो चौधरी, निदा चौधरी पायल चौधरी, आपके वही फेवरेट हो सकते हैं। नहीं आप मजाक में पड़ गए सर। मैं मजाक क्या, आपको निदा चौधरी नहीं पसंद? मुझे नासिर चौधरी पसंद है। नासिर चौधरी कौन है? उसका बहुत बड़े थैले जितना मुंह है। वो नासिर चिन्योटी है। नहीं मेरे ख्याल से वो ऑटो करेक्शन ने कर दिया होगा वो। चिन्योटी को चौधरी, हाँ ये नासिर चौधरी वो बड़ा अच्छा एक्टर है, वो उसका काम मुझे पसंद उसका कौन सा काम आपको पसंद है जी। बताए ना, उसका काम कौन, उसने बेशुमार काम किए। आफ्ताब, इनकी हालतों पे एक शेर मुझे आया जो कि जॉन का खूबसूरत शेर है। जॉन कहता है कि जॉन केड़ा, जॉन सीना या जॉन अब्राहम? जॉन एलिया की बात कर रहा है वो, और मैं इस पे बड़ा हैरान हूं कि जॉन एलिया की बात कर कौन रहा है। क्या कहने, जॉन अब्राहम मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं इसे। जी आफ्ताब, मैं वैसे जॉन अब्राहम की बात कर रहा था। कैसा है वो शायर भी है। उसका एक बहुत खूबसूरत शेर है कि मुआशरे के इस नासूर की पेशानी फोड़ दो, मुआशरे के इस नासूर की पेशानी फोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, नोशी छोड़ दो। शेर वाकई जॉन एलिया का, लेकिन उसका सत्यानाश कर दिया। सिगरेट छोड़ दो, नोशी छोड़ दो, ये जॉन एलिया ने कहा हुआ है? जी क्या कहने भाजी, तुझ ते तित्र खांदे हो ना, ये तितरां दे छित्र खांदा है। आफ्ताब साहब, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका और प्राइवेट कॉलेजेस का भी बहुत बड़ा किरदार है। जितनी ज़्यादा तंबाकू नोशी अब इन तालीमी इदारों में प्रमोट हो रही है, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और मंशियात फरोशी भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है और माँ बाप इससे ला इलम हैं या चशम पोशी बरत रहे हैं। देखें, स्मोकिंग को तो आप इस तरह नहीं रोक सकते, वो बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, वो चोरी छुपे इधर उधर जो मर्जी करेंगे, स्कूल तो है नहीं। लेकिन मनशियात, ये जवाज़ नहीं है इसके लिए, ये तो बहुत ही संगीन जुर्म है और इसमें माशरा, मीडिया, हुकूमत सब। ये जो बैठे हुए हैं ना, अब इन पे कानूनी फ़र्ज़ है कि ये किसी भी कम उम्र शख्स को सिगरेट ना बेचें। सर मैंने ये कभी काम नहीं किया, और मेरे तो छोटा है, किस टाइम बैठा हुए थे यार, किसी बच्चे को दे दे। यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वैसे क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते? मैनू की पता सर, मैं तो खुद नहीं पींदा है सिगरेट। ये नहीं हो सकता कि तुम सिगरेट बेचते हो और तुम ना पीते हो। मैं सर सिगरेट सुगरेट नहीं पींदा, ज्यादा तो ज्यादा कभी कभी स्निफ, कभी कभी बस ऐसे इतना। मैं वो नक ना लकीरा नहीं करता, वो मेरा निजाम बस ऐसे पकड़ी, बस इतना। जैसे माइयां नसवार नहीं सी रखती पुरानियां यार, लाल नसवार माइयां रखती सी। ओए मेरी एक नानी सी, लाल नसवार उन्हें सुनी भाई 3 लाख निछा मारनियां उन्हें। कुत्ते नाने ने उठ जाना, नाने ने एडी एडी मोटी गाल कढ़नी। अच्छा जी, इस बहस को समेटें। ये देखना है कि पॉवर्टी का स्मोकिंग के साथ क्या ताल्लुक है। कहते हैं बड़ा चोली दामन का ताल्लुक है बिल्कुल। कि अपनी कमाई, ये जो आम लोग हैं जिन्हें मेयर सबसिस्टेंस लेवल पे मिलता है, जी, जो मजदूर है, जो डेली वेजर है, कैन यू इमेजिन कि ये अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ स्मोकिंग की नजर कर देते। स्मोकिंग भी और चीनी भी। मजदूर जो है वो क्योंकि मेहनत करता है, उसको थकान होती है, तो वो चाय में 4-4, 5-5 चम्मच चीनी डलवा के पीता है कैलोरीज के लिए, और साथ उसके सिगरेट भी पीता है। दो ही चीजों की उसे शिद्दत से कमी महसूस हो रही होती, कैलोरीज बिल्कुल, एंड और निकोटीन। और यार ये ब्रो क्या करता है? सारे थे कि खच या कॉलेज है जी, अच्छा उस पूरे कॉलेज का हीरो मशहूर है, अच्छा। इन्हें प्रिंस कहते हैं, प्रिंस। ये कौन सा कोई 3rd क्लास कॉलेज है जिसका ये प्रिंस मशहूर है? इस किस्म के बहुत हैं जिनको HEC जो है वो कह भी चुकी है कि ये चार्टर्ड नहीं है, और फिर भी मेडिकल कॉलेजेस भी चला रहे हैं, हर किस्म के कॉलेज चला रहे हैं वो। बाकी ऐसा ही कोई कॉलेज होगा जिसका ये प्रिंस है। भाई जी है तो मेरे नाल ज्यादती हुंदी पई। होना है ना जगह जगह। इसके कॉलेज की कलई खुली है ना, तो उसका अंदर भी सामने आने लगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? क्या? पेजा पेचकस। अरे यार बताओ तो सही, क्या नाम है तुम्हारे कॉलेज का? और सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? नहीं मैं नहीं पता, मैं जानना चाहना। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਵਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਆ ਸਾਰੇ। भाई मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे कॉलेज का नाम क्या है? ਉਹ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਗਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ। ਆਇਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇ। कतिन हज़रात गाने के लिए चलते हैं पेजा पेचकस की तरफ। अकेले न
जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम, ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मुहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना।